Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in the English class. I'm sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take care of yourselves. Stay happy, stay healthy and at the same time learn for your evaluation 2 tests, learn the spellings, learn the exercises and prepare well for your oral assessments also. Okay children? So today we will be doing the revision of chapter number 4. I will start with the revision of chapter number 4. I am sure you all know the syllabus. This is chapter number 4, 5, 6 and poem 2nd and 3rd. These chapters will be coming in evaluation 2 tests. So I am starting with the revision of chapter number 4. Okay? In the previous video, I have given the dictation words. I have given the dictation words. I have posted these words on Snap Homework also. And in the previous video, I have written all the words which I have posted on Snap Homework. सबकी मैंने spellings लिख करके and उसका pronunciation कैसे होता है, how do we pronounce a particular word, मैं कैसे बोलती हूँ, so that you don't face any problem during dictation. इसीलिए मैंने जो 19th का जो इसके पहले जो वीडियो बनाया, that video is on dictation words only. You must see that video so that you do not face, जैसे मैं किसी वर्ड को मैं कैसे प्रोनाउंस करती हूँ, कैसे बोलती हूँ, वो आपको समझ में आएगा एंड जब डिक्टेशन का टेस्ट होगा तो यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम. ओके, तो टुडे आई विल स्टार्ट विद द revision of chapter number 4. Chapter number 4 is My School. I will just read the lesson once. In this chapter, a girl called Yavi is telling about her new school. She has gone to a new school and she is telling about her new school. Okay, so let us know what she is saying. वो क्या कह रही है हम देखते हैं. She says, My school building is very big and beautiful. It has many classrooms. My classroom is painted yellow. It is bright and colorful. We are 20 children in a class. Since Yavi is telling about her new school, वो अपने स्कूल के बारे में बता रही है. That is why the lesson is in first person. Because Yavi herself is narrating. वो खुद narrate कर रही है, इसीलिए ये lesson जो है वो first person में है. ठीक है ना, समझ में आ रहा है वो. My, she is saying कि मेरा स्कूल. So that means Yavi herself is telling about a new school. इसीलिए ये first person में है. Devansh sits on my left. He has a big bag. His bag is blue in color. What is she saying? वो क्या बता रही है अपने स्कूल के बारे में कि मेरी स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी और बहुत सुंदर है, उसमें बहुत सारे क्लासरूम्स हैं. मेरा क्लासरूम जो है वो येलो कलर का है. इट इज ब्राइट एंड कलरफुल, बहुत ब्राइट और कलरफुल है. और हम क्लास में 20 चिल्ड्रन आर देयर. हम शी इज सेइंग वी मतलब सारे बच्चे. We means Yavi and the other children in the class. That is why she is saying we are 20 children in the class. हम क्लास में 20 बच्चे हैं. Then she says Devansh sits on my left. He has a big bag. His bag is blue in color. Gunjan sits on my right. She has a small bag. Her bag is pink. I have a green bag. We are classmates. बता रही है कि देवांश जो है वो मेरे लेफ्ट में बैठता है. लेफ्ट मतलब बाई तरफ. उसका बहुत बड़ा सा बैग है और उसका बैग ब्लू कलर का है. गुंजन मेरे राइट साइड में बैठती है. शी हैज अ स्मॉल बैग. उसका छोटा बैग है और वो पिंक कलर का है. मेरे पास मेरा बैग ग्रीन कलर का है. एंड वी आर क्लासमेट्स. क्लासमेट्स मीन्स चिल्ड्रन हु स्टडी इन द सेम क्लास. तो हम लोग क्लासमेट्स हैं. You can see in the picture also in your book. That is page number 33. I hope you all have the books. You can see Yavi in the center. Devansh is on her right. Devansh is on her left and Gunjan is on her right.
Devansh has a blue bag, Gunjan has a pink bag, Yavi has a green bag. We play together on the swings during races. We have a big skating rink and a large swimming pool. I like to swim, but they like to skate. Devansh is good at playing football. He is the captain of our class team. Gunjan is shy. She likes to read story books in the school library. वो कह रही है कि हम स्विंग्स पे एक साथ खेलते हैं रेसेस में. हमारे पास हमारे स्कूल में बहुत बड़ा सा एक स्केटिंग रिंक है और बहुत बड़ा सा एक स्विमिंग पूल है. मुझे स्विमिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन उनको स्केटिंग पसंद है. देवांश फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा है. वो हमारी क्लास टीम का कैप्टन भी है. गुंजन बहुत शाई है. उसको स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है. स्कूल लाइब्रेरी में बैठ करके उसे स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है. टर्न द पेज चिल्ड्रन, पेज नंबर 34. देयर आर मेनी ट्रीज इन आवर स्कूल कंपाउंड. हमारे स्कूल कंपाउंड में बहुत सारे ट्रीज हैं. कंपाउंड का मतलब होता है किसी भी कोई एक एनक्लोज्ड एरिया. जैसे स्कूल है, स्कूल की एक बाउंड्री वॉल होती है. स्कूल के अंदर का जो एरिया है दैट इज कंपाउंड. जैसे हॉस्पिटल है, ऑफिस है, ठीक है, कोई बिल्डिंग जो कि इनक्लोज्ड एरिया होता है. अब पार्क में खेलने जाते हो, ग्राउंड में जाते हो, कहीं पे भी खेलने किसी प्ले ग्राउंड पे जाते हो, तो उसको कंपाउंड नहीं बोलते, बिकॉज दैट इज ओपन. ठीक है, कंपाउंड मतलब इनक्लोज्ड एरिया. जैसे सोसाइटी है, कोई बिल्डिंग्स है, फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट सोसाइटी होती है, तो उसका जो कंपाउंड है, ठीक है, तो कंपाउंड इज इनक्लोज्ड एरिया. The wall of our school is painted grey and green. There are beds of pretty flowers along the wall. कह रही कि हमारे स्कूल कंपाउंड में बहुत सारे ट्रीज हैं. हमारे स्कूल की जो वॉल है वो ग्रीन और ग्रे कलर की पेंटेड है, और जो वॉल के साथ साथ में बहुत सुंदर फ्लावर बेड्स है. बेड का मतलब यहाँ पे क्यारी. प्रीटी मीन्स बहुत सुंदर, एंड बेड का मतलब है जो क्यारी. जैसे फ्लावर्स आपने अपने घर में देखा होगा, अपने स्कूल में देखा होगा कि जो फ्लावर्स लगाते हैं ऐसे तो कहीं भी नहीं लगा देते. पहले उनको लगाने की जो जगह होती है जहां पे लगाते हैं, क्यारी जिसको बोलते हैं. इंग्लिश में उसे बेड्स कहते हैं. ओके, वैसे तो बेड का मतलब बिस्तर होता है, बट यहाँ पे बेड का मतलब है फ्लावर की, जो फूल लगाने की जो क्यारी होती है, जैसे बोलते हैं फ्लावर बेड. ओके, सो दिस इज द लेसन. आई हैव ऑलरेडी गिवन द डिफिकल्ट वर्ड्स, स्पेलिंग वर्ड्स फॉर स्पेलिंग्स. Word meanings I will explain once. Word meaning. First word is classmate. Classmate means one who studies in the same class. जैसे आप लोग जितने बच्चे हो, all the children who study in class 1, you all are classmates. आप लोग जितने बच्चे क्लास 1 में पढ़ते हो, आप सारे क्या हो? आप सारे क्लासमेट हो. ओके, एंड द चिल्ड्रन हु स्टडी इन द सेम स्कूल. जो बच्चे सारे एक स्कूल में पढ़ते हैं, दे आर स्कूलमेट्स. जो बच्चे सारे बच्चे जितने बच्चे सेम स्कूल में पढ़ते हैं, दे आर नोन एज स्कूलमेट्स. एंड द चिल्ड्रन हु स्टडी इन द सेम क्लास, दे आर नोन एज क्लासमेट्स. आप लोग जितने बच्चे हो, सारे क्लास में जो पढ़ते हो, वो सारे क्या हो? क्लासमेट्स. देन सेकेंड इज skating rink. Remember children, this is not ring. R-I-N-G. Ring नहीं है ये. This is rink. So boxing rink. Boxing rink, skating rink मतलब एरिया जहां पे स्केटिंग करते हैं. स्केटिंग रिंक है जैसे एनक्लोज्ड एरिया होता है. राउंड हो, सर्कुलर शेप में हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, जहां पे स्केटिंग करते हैं. दैट इज एन एनक्लोज्ड एरिया. अंदर पूरा वहां का फ्लोर पूरा स्मूथ होता है, सो दैट इजीली स्केटिंग कर सकें. So this is R-I-N-K, skating rink.
place with smooth floor for skating. अगर फ्लोर मतलब जो जमीन होती है, अगर वो स्मूथ नहीं होगी, अगर वो उबड़ खाबड़ होगी, रफ होगी, तो वहां पे स्केटिंग करना बहुत मुश्किल होगा. तो जो स्केटिंग रिंक होती है वहां का फ्लोर एकदम स्मूथ होता है. सो दैट, क्योंकि स्केटिंग में क्या होता है, वो सॉर्ट ऑफ स्लाइड करते हैं ना विदाउट एनी सपोर्ट. दिस इज RINK रिंक. जैसे बॉक्सिंग रिंक है, बॉक्सिंग रिंग भी देखा है ना, स्क्वायर सा एरिया होता है जो कि चारों तरफ रोप्स रहती है एंड उसके अंदर बॉक्सिंग करते हैं. सो दिस इज RINK रिंग. The next word is compound. Compound is ENCLOSED. Enclosed area. Compound means enclosed area, जो चारों तरफ से कवर्ड होता है. Enclosed मतलब घिरा हुआ, हिंदी में उसको कहते हैं घिरा हुआ. तो जो चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया होता है, दैट इज कंपाउंड. देन नेक्स्ट वर्ड इज बेड्स. हियर वर्ड यहां पे इससे लिखा है ये बताने के लिए कि इस लेसन में जो बेड्स वर्ड को यूज किया है उसका मतलब है यहाँ पे एरिया. ऐसे अदरवाइज बेड्स मीन्स बिस्तर जिसमें हम सोते हैं, बट इन दिस लेसन बेड्स मीन्स एरिया. दैट इज वाई हियर इज रिटन. ओके. एंड फिफ्थ वर्ड इज PRETTY. प्रिटी. प्रिटी मीन्स लवली. लवली, वेरी ब्यूटिफुल. कहते हैं वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर. लवली, ब्यूटिफुल. 5 word meanings are there. Now exercises. We will start with exercises. First is comprehension. In every lesson there are few exercises based on comprehension. कुछ exercises comprehension पे based होती हैं to check your understanding of the lesson. ये check करने के लिए कि आपको lesson समझ में आया कि नहीं आया. Then some exercises are based on grammar. ग्रामर पढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं. देन सम एक्सरसाइजेज आर बेस्ड ऑन स्पीकिंग स्किल. सम एक्सरसाइजेज आर देयर टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल. ओके. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज आर देयर. वी विल स्टार्ट विथ कॉम्प्रिहेंशन. फर्स्ट एक्सरसाइज इज कॉम्प्रिहेंशन. राइट yes or no in the given boxes for the following sentences. Comprehension. Write yes or no. For the following sentences. First is Yavi's school has many classrooms. School has many classrooms. फर्स्ट सेंटेंस है कि यावी के स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स हैं. दिस इज ट्रू और फॉल्स. आई मीन यस और नो. इसमें आप क्या लिखोगे? यस लिखोगे कि नो लिखोगे? दिस इज ट्रू बिकॉज यावी सेज ना, कहती है ना कि इट हैज मेनी क्लासरूम्स. सो यावी स्कूल हैज मेनी क्लासरूम. दिस इज यस. देन सेकेंड इज
her classroom is red in color. Is this sentence correct or incorrect? The sentence says कि यावी's classroom is red in color. मतलब यावी का जो क्लासरूम है वो रेड कलर का है. This is not correct because she says my classroom is painted yellow. उसने क्या बोला? उसने बोला ना कि my classroom is painted yellow. So this sentence is not correct. We will write no. Then third is Devansh has a blue color bag. Devansh has a blue color bag. Is this sentence right or wrong? देवांश के पास ब्लू कलर का बैग है. दिस सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज यावी ने बोला ना कि देवांश सिट्स ऑन माई लेफ्ट, ही हैज अ बिग बैग, हिज बैग इज ब्लू इन कलर. सो वी विल राइट हियर यस. फोर्थ इज Gunjan has a green color bag. Gunjan has a green color bag. Is this right or wrong? This is not correct. Gunjan has a pink color bag and Yavi's bag is green in color. So we will write no for this. And fifth is Yavi likes to swim. यावी को स्विम करना अच्छा लगता है. Yavi likes to swim. This is true because she says na, I like to swim but they like to skate. So this is true. Yes. Okay. Now next exercise is if you wish to write you can. अगर किसी का छूट गया है तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो बुक में. Okay. Now next is do you like your school? Complete the following sentences. This is like a small comprehension. आपकी स्कूल के बारे में छोटा सा पैराग्राफ है. So here you have to complete the sentences by writing the correct answers. The name of my school is, सबको अपने स्कूल का नाम पता है. The name of my school is Army Public School. There are dash children in my class. You can write there are 40 children in my class. My teacher's name is, teachers का टीचर का नाम सबको पता है. And my partner's name is. This you cannot write right now because आप अभी स्कूल नहीं जा रहे हो, अभी आप घर पे हो. पार्टनर का मतलब है जो आपके साथ बैठता, जो क्लास में जो भी बच्चा आपके साथ बैठता, दैट इज योर पार्टनर. आपके साथ सेम बेंच पे जो बच्चा बैठता है वो आपका पार्टनर है. सो दैट दिस यू कैन नॉट राइट राइट नाउ बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल. इसको बाद में लिख सकते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विथ ग्रामर. अभी ग्रामर में लेट अस सी व्हाट इज देयर. Did you notice these new words? He, she, it, his, her, we and they in the story My School. मतलब आपने स्टोरी जो अभी हमने स्टोरी जो पढ़ी My School, इसमें कुछ वर्ड्स हैं, some new words like he, she, it, his, her, we, they. These are some new words which are used in the story. These words are used इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नेमिंग वर्ड्स. ये वर्ड्स जो हैं ये यूज हुए हैं जो नेमिंग वर्ड्स हैं उनको बार बार रिपीट करने की जगह. लाइक फर्स्ट सेंटेंस यू विल सी व्हेन यावी टेल्स अस अबाउट हर स्कूल.
My school building is very big and beautiful. It has many classrooms. ठीक है, जैसे उसने अपने स्कूल की बिल्डिंग के बारे में बताया. School is a naming word. School building is very big and beautiful. In next sentence, in the next sentence, she uses the word it. स्कूल के लिए उसने नेक्स्ट सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज किया? इट. ओके. इट हैज मेनी क्लासरूम्स. देन शी सेज माई क्लासरूम इज पेंटेड येलो. हियर शी इज टॉकिंग अबाउट हर क्लासरूम. फिर नेक्स्ट सेंटेंस में शी सेज इट. यहां पे उसने क्लासरूम की जगह कौन सा वर्ड यूज किया? इट. वी आर 20 चिल्ड्रन इन अ क्लास. वी का मतलब है कि शी इज टॉकिंग अबाउट एवरीवन इन द क्लास. तो अपने क्लास में जितने बच्चे हैं सबके बारे में बोल रही है. सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स दैट इज नाउन. इन वर्ड्स को ग्रामर में दे आर नोन एज प्रोनाउंस. PRONOUNS. Nouns, naming words are known as nouns, and these words which are used in place of nouns are known as pronouns. ठीक है, हिंदी में जरूर सर्वनाम पढ़ा होगा. जैसे इंग्लिश में जो हम नेमिंग वर्ड या नाउन्स पढ़ते हैं, दे आर नोन एज, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा. इंग्लिश में जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम. आई एम श्योर हिंदी में आप सबने सर्वनाम जरूर पढ़ा होगा व्याकरण में. तो सर्वनाम को ही इंग्लिश में हम प्रोनाउंस कहते हैं. सो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. इस लेसन में हमने पढ़ा ही, शी, इट, हिज, हर, वी एंड दे. ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नेमिंग वर्ड्स. ये वर्ड्स हम प्रोनाउंस हम कब यूज करते हैं? जब बार बार नेमिंग वर्ड को हम रिपीट नहीं करते हैं. बार बार नेमिंग वर्ड को रिपीट करना देखने सुनने में अच्छा नहीं लगता है. व्हेन वी रीड इट, इफ बार बार इफ आई से माई स्कूल, माई स्कूल, माई स्कूल और माई क्लासरूम, इट डजंट साउंड वेरी गुड. सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता है. इसीलिए नेमिंग वर्ड्स को बार बार रिपीट नहीं करके उसकी जगह पे हम प्रोनाउंस यूज करते हैं. ओके. इट इज यूज फॉर एनीथिंग, एनी बिल्डिंग. किसी भी चीज के लिए इट हम यूज करते हैं. इट इज नॉट यूज फॉर एनी पर्सन. किसी पर्सन के लिए हम इट नहीं यूज करते. पर्सन के लिए हम यूज करते हैं ही है, शी है, हिज, हर, वी, दे. बट इट इज यूज फॉर एनी नॉन लिविंग थिंग. कोई भी नॉन लिविंग चीज है उसके लिए हम इट यूज करते हैं. ओके. सो दीज वर्ड्स आर नोन एज प्रोनाउंस. नाउ द एक्सरसाइज इज सर्कल द राइट वर्ड्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस. इन ईच सेंटेंस, अभी यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक सेंटेंस में देर आर 2 प्रोनाउंस. से जो नेमिंग वर्ड है प्रीवियस सेंटेंस में, उसके लिए 2 प्रोनाउंस आर यूज्ड. यू हैव टू सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ रिपीटिंग द नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करके हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं. रोहन इज नितिन्स फ्रेंड. हु इज रोहन? रोहन कौन है? रोहन नितिन का फ्रेंड है. शी और ही इज 6 years old. ठीक है. ही इज यूज फॉर मेल नेमिंग वर्ड्स. जो मेल होते हैं जैसे बॉय, फादर, ब्रदर, अंकल, जो मेल नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम ही यूज करते हैं. एंड वी यूज शी फॉर फीमेल नेमिंग वर्ड्स लाइक सिस्टर, ब्रदर, आंट, ग्रैंडमदर. ठीक है. उसके लिए हम शी यूज करते हैं. सो रोहन इज नितिन्स फ्रेंड. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रोहन. यहाँ पे हम रोहन की बात हो रही है. तो रोहन के लिए हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज ही. सो वी विल सर्कल ही. ही इज 6 years old. वी आर कंटिन्यूअसली, अभी हम यहाँ पे रोहन के लिए बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे?
he, so he is 6 years old. He likes to play football. He is wearing his or her favorite shirt. Now we are talking about favorite shirt. He is wearing his or her favorite shirt. Now his is used for males and her is used for female. ठीक है? He मतलब वो और his मतलब उसने. Similarly she means वो और her मतलब उसकी. So अगर मेल है like boy, brother, uncle, grandfather, father, then we use he or his. जो भी requirement है, जो भी word हमें use करना है. And if it is female like mother, sister, aunt, grandmother, तो उसके लिए हम she या her. Again, whatever the requirement is. So he is wearing his favorite shirt. It is blue in color. ये blue color की है. Mona is Rohan's baby sister. Now here we are talking about Mona. तो हम इसके लिए मोना के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? We will use she और her. यहाँ पे मोना के लिए बात कर रहे हैं तो मोना के लिए हम she या her यूज करेंगे. So Mona is Rohan's baby sister. She has short black hair. She has a toy cat. It is grey in color. It, as I told you, it is used for non-living things. जैसे ना, it is, he is wearing his favorite shirt. It is blue in color. He and it. Two pronouns are given. So we will not use he because he is used for male naming words and it is used for non-living things. So it is blue in color. Similarly, we or it is grey in color. Here we are talking about Mona's toy cat. Toy cat के बारे में हम बात कर रहे हैं. So we will use it. It is grey in color. And we use it for animals also. जैसे कोई अगर bird है, animal है, उनके लिए अगर हमें pronoun use करना है तो we use it. For animals and birds we do not say he or she. We use it. Rohan and Mona live in Goa. Now here we are talking about Rohan and Mona both. दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं. इसके पहले हमने रोहन यूज किया. रोहन वॉज अ सिंगल बॉय. जैसे एक सिंगल बॉय के बारे में हमने बात की तो हमने ही यूज किया. मोना इज अगेन सिंगल चाइल्ड, सिंगल गर्ल. एक गर्ल के बारे में हमने बात किया तो वी यूज शी. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रोहन एंड मोना. These are two children. That means plural है. तो यहाँ पे हम he या she नहीं यूज करेंगे. We will not use he or she. We will use the plural form. Singular में हम he and she यूज करते हैं. Plural में we. Like Yavi says, we are 20 children in the class. We are classmates. So when we talk of plural, when we talk of more than one person, then we use we. So Rohan and Mona live in Goa. We use we or they. ठीक है. जब we तो हम यूज करते हैं when we talk about ourselves. ठीक है. I या if there is someone else with me, अगर हम एक से ज्यादा है then we say we use we. When we talk about someone else, जैसे हमने he यूज किया, she यूज किया for single, और अगर plural है, if it is more than one, then we use they. Okay. So Rohan and Mona live in Goa. They have a house near the sea. They have come to meet Nitin on a holiday. And we are all good friends now. Okay. So when we talk about ourselves, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तब तो हम I बोलते हैं. We use I. And if it is more than one, then we use we. And when we talk about someone else, singular के लिए हम he यूज करते हैं. We use he for singular, he and she, and we use they for plural. So Rohan and Mona live in Goa. They have a house near the sea. They have come to meet Nitin on a holiday. We are all good friends now. Okay. So I hope this is clear now. Pronoun किसे कहते हैं? Pronouns are the words which are used in place of repeating the naming words. Repeat करना मतलब बार बार बोलना.
ठीक है. सो आई होप चिल्ड्रन दिस इज क्लियर टू यू. प्रोनाउन सबको समझ में आया, हमने पहले भी किया हुआ है. In the next class, we will be doing word building. Okay, children? So today I will stop here only. Thank you so much.